بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى أبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے کے بعد اب ہم لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلا سوال، حضرت سلیمان علیہ السلام کون تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے نبی تھے، جس طرح داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سب تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ داؤد علیہ السلام کے بعد کے فوری بعد کے بیٹے، سیدھے بیٹے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے کنٹرول میں دے دیا تھا۔ وہ ہوا کو اپنی مرضی سے ادھر ادھر کر سکتے تھے، اور جنات کو بھی ان کے کنٹرول میں دیا تھا، وہ جنات پہ حکومت کرتے تھے۔ یہ خاص معجزہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی کس طرح شروع ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا تھا، اور ان دونوں نے کہا کہ کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومین بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا تھا، اور ان دونوں نے کہا کہ کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومین بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور وارث ہوا سلیمان داؤد کا۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث تھے، بیٹے تھے۔ اور اس نے کہا، اے لوگو، ہمیں سکھا دی گئی ہے پرندوں کی بولیاں۔ پرندوں سے گفتگو کرتے تھے، وہ بات کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام جانوروں سے، پرندوں سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ سکھا دی گئی ہے پرندوں کی بولیاں، اور ہمیں ہر چیز عطا کی گئی ہے، یقیناً یہ بہت واضح فضل ہے۔ اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے اس کے تمام لشکر، جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو کنٹرول دیا تھا، انسانوں پہ تو تھا اور پرندوں پر بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں کے بادشاہ تھے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی تھی، ہم نے دیکھا۔ سلیمان علیہ السلام ان کے وارث بنے تھے، تو سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ تھے۔ اور پرندوں میں سے اس طرح کے انہیں جماعتوں میں منظم کیا جاتا تھا۔
यहाँ तक कि जब वो चींटियों की वादी में पहुंचे। तो एक दफा सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटियों की वादी में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, ए चींटियों, तुम सब अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसके लश्कर तुम्हें कुचल कर रख दे और इन्हें उसका एहसास भी ना हो। तो चींटियों की वादी में एक चींटी ने कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, अपने बिलों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि वो तुमको कुचल दे और उनको पता भी ना चले। तो वो खुश होकर मुस्कराया उसकी उस बात पर, और उसने कहा, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, मुझे तौफीक दे के मैं शुक्र अदा करूं तेरी इस नेमत का मैं शुक्र अदा करूं जो तूने मुझे और मेरे वालिदैन को अता की है, और ये कि मैं अच्छे अमाल करूं जिनसे तू राजी हो, और मुझे दाखिल करना अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की। और उसने परिंदों के लश्कर का मुआयना किया तो कहा कि क्या बात है, मुझे हुदहुद नजर नहीं आ रहा, क्या वो गैर हाजिर है। तो परिंदों के लश्कर का, परिंदों की जमात का जब मुआयना किया, जब देखने गए, तो एक परिंदा हुदहुद वहां पर मौजूद नहीं था। तो उन्होंने कहा क्या बात, तो कहा कि क्या बात है, मुझे हुदहुद नजर नहीं आ रहा, क्या वो गैर हाजिर है? मैं उसे बहुत सख्त सजा दूंगा, या उसे जुबा कर डालूंगा, या वो मेरे पास कोई वाज़ेह दलील लेकर आए। अगर वो वाज़ेह दलील नहीं लेकर आता, क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर मौजूद नहीं है काम के लिए, तो या तो वो वाज़ेह दलील ये लेकर आए, रीजन, प्रॉपर रीजन लेकर आए, या फिर मैं उसे सजा दूंगा या फिर जुबा कर दूंगा। तो कुछ ज्यादा देर नहीं गुजरी तो उसने कहा कि मैंने वो कुछ मालूम किया है, यानी कि हुदहुद वापस आने के बाद कहा, मैंने वो कुछ मालूम किया है जो आपको मालूम नहीं, और मैं आपके पास कौम सबा से मुतालिक यकीनी मालूमात लेकर आया हूँ। कौम सबा एक कौम के बारे में कुछ मालूमात लेकर आया था वो परिंदा। और कहा, मैंने एक औरत को उन पर हुकूमत करते हुए देखा है, और उसे हर शय दी गई है, और उसका तख्त बहुत अजीमुश शान है। एक औरत के वो कौम के ऊपर एक औरत की हुकूमत है, हर चीज दी गई है उसको, बहुत आलीशान है, और उसका तख्त बहुत अजीमुश शान है। और मैंने देखा उसको और उसकी कौम को कि वो सजदा करते हैं सूरज को अल्लाह को छोड़कर, और शैतान ने उनके लिए इनके आमाल को मजीन कर दिया है। तो वो लोग तो क्या करते थे, पर वो कौम सबा के लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते थे, वो सूरज की इबादत करते थे। वो सजदा करते हैं सूरज को अल्लाह को छोड़कर, और शैतान ने उनके लिए उनके अमाल को मजीन कर दिया है, और इन्हें रोक दिया है सीधे रास्ते से, तो अब वो रास्ता नहीं पा रहे, कि वो सजदा नहीं करते अल्लाह को जो निकालता है हर हर छुपी चीज को आसमानों और जमीनों में से, और वो खूब जानता है जो कुछ तुम छुपाते हो और जो कुछ तुम जाहिर करते हो। और अल्लाह के जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, और जो बहुत बड़े अर्श का मालिक है। सुलेमान ने कहा, हम अनकरीब देखेंगे कि तुमने सच कहा है या तुम झूठे हो, मेरा ये खत ले जाओ। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो उस परिंदे से कहा कि ये खत लिख के उसके उनके पास भेजा है, वो कौम सबा के मालकिन के पास, बादशाह के पास, वो जो औरत थी, मेरा ये खत ले जाओ, उसे उनके पास जाकर डालाओ, फिर उनसे अलग होकर देखते रहो कि वो क्या जवाब देते हैं। उसने कहा कि जब उसने हुदहुद ने लेके जाकर खत डाला, तो उसने, वो मलिका ने कहा कि उसने कहा कि ए मेरी कौम के सरदारों, मेरी तरफ एक बहुत इज्जत वाला खत डाला गया है। ये सुलेमान की तरफ से है, और उसका आगाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हुआ है। ये कि मेरे मुकाबले में तुम लोग सरकशी ना करो और मतई होकर मेरे पास हाजिर हो जाओ। उसने कहा, ए सरदारों, मेरे उस मामले में आप लोग मुझे मशवरा दे, मैं किसी मामले में भी हमती फैसला नहीं करती जब तक आप लोग मौजूद ना हो, यानी कि दूसरे सारे सरदार मौजूद ना हो, मैं अकेला फैसला नहीं करती बोलकर उन्होंने कहा।
इन्होंने कहा हम ताकतवर भी हैं और जबरदस्त जंगी सलाहियत वाले भी, और फैसले का इख्तियार तो आप ही के पास है, चुनांचे आप खुद देख लें कि क्या हुक्म देती है। तो सरदारों ने कहा कि हमारे जमात बहुत ताकतवर है और जंग भी कर सकते हैं, लेकिन मलिका आप है तो फैसला आपके ऊपर है, आप जो फैसला लेंगी उसकी हुक्म दीजिए बोलकर उन्होंने कहा। उसने कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसमें फसाद बर्पा कर देते हैं और उसके मौजिस लोगों को दलील कर देते हैं, और वो ऐसा ही करते हैं। तो मैं उनकी तरफ अपनी एलची कुछ ताइफ के साथ भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो क्या जवाब लेकर वापस आते हैं। यानी कि मैं कुछ तोहफे भेजती हूँ उनको, कुछ गिफ्ट देती हूँ, जिसकी वजह से हो सकता है वो ये पैगाम रोक दे, जरूरत नहीं पड़ेगी उनको हमको जंग करने की, तो उसकी वजह से ये पैगाम रोक दे, उन्होंने इस तरह से कहा। तो जब वो आया आसमान के पास, उसने कहा कि क्या तुम मेरी आका आनत करना चाहते हो माल व दौलत से। तो जब वो जो भी गिफ्ट था उन्होंने भेजा, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या तुम मेरी आनत करना चाहते हो माल व दौलत से, माल व दौलत मेरे को देना चाह रहे तुम लोग बोल के इस तरह से पूछा। तो जो कुछ मुझे अल्लाह ने देकर रखा है वो कहीं बेहतर है उससे जो उसने तुम्हें दिया है। अपने उन तहाइफ से तुम खुद ही खुश रहो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इन गिफ्ट की, तुम खुद ही ले लेके रख लो बोलकर बोल रहे हो। तुम लौट जाओ उनकी तरफ तो हम उन पर ऐसे लश्करों से हमलावर होंगे जिनका मुकाबला उनके लिए मुमकिन नहीं होगा, और हम निकाल बाहर करेंगे उन्हें उस मुल्क से जलील करके, और वो ख्वार हो जाएंगे। फिर अपने दरबारियों से मुखातिब होकर सुलेमान ने कहा, ए दरबारियों, तुम में से कौन उस मलिका का तख्त मेरे पास लाएगा उससे पहले कि वो लोग फर्माबरदार होकर मेरे पास पहुंचे। तो वो लोग जो फौज लेकर निकल रहे थे, इससे पहले कि वो मलिका यहाँ पर आए, उसका तख्त मेरे पास लेकर आओ, उससे पहले कौन लेकर आएगा बोलकर इस तरह से सुलेमान अलैहिस्सलाम पूछे। वीरों में से एक देव ने कहा कि मैं उसे आपके पास ले आता हूँ, उससे पहले आप अपनी इस मजलिस से उठिए, मजलिस में से आप उठने से पहले मैं ले लेकर आता हूँ, उस सलाहियत है मेरे पास बोल के एक जिन कहा। और मैं यकीनन उस काम के लिए ताकत भी रखता हूँ और अमानतदार भी हूँ। कहने लगा वो शख्स जिसके पास किताब कायम था कि मैं उसे आपके पास ले आता हूँ उससे कबल के आपकी निगाह पलटकर आपकी तरफ आए। तो उसमें से और एक शख्स जिसके पास किताब कायम था, यानी कि ज़बूर कायम था, उस वक्त किताब जो थी वो ज़बूर थी, इल्म था, बल्कि आपकी निगाह पलट कर आपकी तरफ आए, आप पलक झपकाने से पहले मैं वापस वो तख्त यहाँ पे ले लेके आता हूँ बोल के बोला उन्हें। जब उसने देखा उसे अपने सामने रखा हुआ तो उसकी तरह ला भी दिया। तो जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त को देखा तो उसने कहा कि मेरे रब ही के फजल से है, ताकि वो मुझे आजमाए कि क्या मैं शुक्र अदा करता हूँ या नाशुक्री करता हूँ, और जो कोई शुक्र करता है वो अपने ही लिए करता है, और जो कोई नाशुक्री करता है तो मेरा रब यकीनन बेनियाज है, बहुत कर्म करने वाला है। सुलेमान ने कहा कि उसके लिए उसके तख्त के है जरा बदल दो, यानी कि थोड़ा बहुत चेंजेस कर दो तख्त में ताकि उन्हें पहचान ना सके बोलकर इस तरह से कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। हम देखेंगे कि वो पहचान पाती है या उन लोगों में से होती है जो नहीं पहचान पाते। फिर जब वो आई तो कहा गया कि क्या उसी तरह का है आपका तख्त, आपके तख्त वो तख्त बताए उनको, बता के पूछे आपका तख्त भी इस तरह का है क्या बोल के पूछे। उसने कहा ये तो गोया वही है, और हमें उससे पहले ही इल्म हासिल हो चुका है और हम सलाम ला चुके हैं। तो जब उन्होंने तख्त को देखा तो उन्होंने पहचान लिया कि मेरा इस तख्त है, और उनको पता चल गया, और उन्होंने सच पता चल गया और सलाम ला लिया उन्हें। और सुलेमान ने उसे रोक दिया जिसको वो पूछती थी अल्लाह के सिवा, वो एक काफिर कौम में से थी। उससे कहा गया कि अब महल में दाखिल हो जाओ। तो जब उसने उसके फर्श को देखा तो उसे गहरा पानी समझा। तो जब महल में दाखिल हुए, महल के फर्श को देखा, इस तरह से साफ काहीने का था वो, तो उसको क्या समझा उन्होंने, पानी समझा। उसे गहरा पानी समझा और अपनी दोनों पिंडलियां खोल दी
और सुलेमान ने कहा, ये तो ऐसा महल है जो मरसा है, शीशों से बना हुआ है। उसने कहा, ए मेरे परवरदिगार, यकीनन मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है, और अब मैंने सुलेमान के साथ अल्लाह की इताअत इख्तियार की है, जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। और इस तरह से कहकर उन्होंने इस्लाम ला लिया। उसके बाद आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, सूरह अंबिया आयत नंबर 78 में, हम्म, और दाऊद और सुलेमान को जब और दाऊद और सुलेमान को भी यही नेमत अता फरमाई जब वो एक खेती के बारे में फैसला कर रहे थे। दोनों मिलकर एक खेती के बारे में फैसला कर रहे थे, जब उसमें घुस गई थी कुछ लोगों की बकरियां, और हम उनके फैसले के वक्त वहां मौजूद थे। तो हमने फहम अता कर दिया उस फैसले का सुलेमान को। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उसका फैसला बता दिया, और हर एक को हमने हुक्म और इल्म अता किया था। और हमने मसखर कर दिया था दाऊद के साथ पहाड़ों को जो तस्बीह करते थे। हमने दाऊद अलैहिस्सलाम के वीडियो में देखा। और परिंदों को भी, और ये सब कुछ करने वाले हम ही थे। और हमने उन्हें तुम्हारे लिए लिबास की सनद सिखाई ताकि वो तुम्हें बचाए तुम्हारे जंग से। तो क्या तुम शुक्रगुजार बनते हो? और सुलेमान के लिए तेज चलने वाली हवा को, जो उसके हुक्म से चलती थी। हाँ, अल्लाह ताला ने हवा को सुलेमान अलैहिस्सलाम के कंट्रोल में दिया था, तो वो अपनी मर्जी से हवा को कहीं भी मोड़ सकते थे। उसके हुक्म से चलती थी उस सरजमीन की तरफ के जिसमें हमने बरकत अता की थी, और हम तमाम चीजों का इल्म रखने वाले हैं। और शयातीन में से भी हमने बहुत बहुत सौ को मस्खर कर दिया था, जो उसके लिए समंदरों में गोताखोरी करते थे। तो शयातीन में से यानी जिनों में से कुछ भी एक फौज दी थी। जिनों के ऊपर भी अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को कंट्रोल दिया था। तो वो लोग समंदरों में गोताखोरी करते थे, यानी कि समंदरों में डुबकियां लगाते थे उनके लिए। और वो उसके अलावा बहुत से दूसरे काम भी करते थे, और हम ही उन पर निगरान थे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को कंट्रोल दिया था उन्होंने, अल्लाह ताला ने, जिनों पर। उसके बाद आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, सूरह साद आयत नंबर 31। जब उसके सामने पेश किए गए शाम के वक्त अमदा नस्ल के असील घोड़े, एक्चुअली 31 थे। और हमने दाऊद को सुलेमान जैसा बेटा अता किया। वो बहुत ही अच्छा बंदा था, बेशक वो बड़ा ही रुजू करने वाला था। जब उसके सामने पेश किए गए शाम के वक्त अमदा नस्ल के अच्छे घोड़े, तो उसने कहा कि मैंने पसंद कर लिया माल की मोहब्बत को अपने रब के जिक्र के मुकाबले में, यहाँ तक कि सूरज छुप गया ऊंट में। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम भी बट इंसान थे, गलती उनसे भी होती थी। तो उन्होंने क्या किया, जब घोड़े उनके सामने अच्छी नस्ल के रखे गए तो उनको चुन लिया अल्लाह के जिक्र के बदले। तो उसके बाद क्या हुआ, तो उसने कहा, वापस लाओ उनको मेरे पास। तो जब वो लगा तलवार मारने उनके टांगों और गर्दनों पर, और हमने आजमाइश में डाला सुलेमान को, और उसके तख्त पर हमने एक जसद डाल दिया। फिर उसने रुजू किया, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया, रुजू कर लिया वापस अल्लाह की तरफ, आ गए माफी मांगकर। उसने दुआ की, परवरदिगार मुझे माफ फरमा दे, और मुझे ऐसी हुकूमत अता फरमा जो मेरे बाद किसी और के लिए सजावार ना हो। यकीनन तू ही अता फरमाने वाला है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे माफ फरमा दे, और मुझे ऐसी हुकूमत अता फरमा जो मेरे बाद किसी और के लिए सजावार ना हो, किसी और को नहीं मिलेंगी। ये ऐसी हुकूमत अता कर जो सिर्फ मेरे लिए है, मेरे बाद किसी को नहीं मिलेंगी। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने हवाओं पर और जिनों पर भी कंट्रोल दिया था उनको, सुलेमान अलैहिस्सलाम को। उसके बाद ये किसी को ये मौजूदा नहीं मिला, यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं मिला ये मौजूदा। तो हमने उसके लिए हवा को भी मुसखर कर दिया,
और वो उसके हुक्म से चलती थी बहुत नरमी से, जहां कहीं का वो कसद करता। और सरकश जिन्नात को भी हमने मस्खर कर दिया था, सबके सब इमारतें बनाने वाले और गोताखोरों को। इमारतें बनाते थे और गोताखोर करते थे उनके लिए, यानी समंदरों में डुबकियां लगाते थे। और दूसरे जिन्नात को भी जो झगड़े हुए थे जंजीरों में। ये हमारी अता है, बस तुम चाहो तो लोगों पर एहसान करो या अपने पास रोके रखो, उस पर कोई हिसाब नहीं। और उसके लिए हमारे पास मुकाम खर्ब भी है और बहुत उम्दा ठिकाना भी है। उसके बाद आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, सूरह सबा में और सुलेमान के लिए हवा को मुसखर कर दिया था, उसका सुबह को चलना भी एक माह का सफर था, और उसका शाम को चलना भी एक माह का सफर था। और हमने उसके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा जारी कर दिया था, एक चश्मा जारी करा था पिघले हुए तांबे का अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए। और कुछ जिन भी उसके ताबे कर दिए थे, जो उसके सामने काम करते थे उसके रब के हुक्म से। और उनमें से जो कोई भी हमारे हुक्म से सरताबी करता, उसे हम जला देने वाला अजाब चखाते थे। वो बनाते थे उसके लिए जो वो चाहता था, बड़ी बड़ी इमारतें और मुजस्सिमे, और तालाबों के मानिंद बड़े बड़े लगन और बड़ी बड़ी देगे, जो एक जगह मुस्तकिल पड़ी रहती थी। ए दाऊद के घर वालों, अमल करो, शुक्र अदा करते हुए, और मेरे बंदों में लश्कर करने वाले कम ही हैं। शुक्र करने वाले मेरे बंदों में शुक्र करने वाले कम ही हैं। फिर जब हमने उस पर मौत तारी कर दी, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को मौत दे दी अल्लाह ने, तो किसी ने उनको जिन्नात को उसकी मौत से आगाह ना किया। तो वो उन जिन्नात वहां पर काम कर रहे थे उनके सामने, तो किसी को पता नहीं चला कि सुलेमान अलैहिस्सलाम वफात पा गए, और वो लोग अभी भी उनके डर से काम करते जा रहे हैं। मगर जमीन मौत से आगाह ना किया, मगर जमीन के कीड़े ने जो उसके आशा को खाता था। तो जमीन में से कीड़ा निकलकर उनके आशा को, यानी कि लकड़ी वगैरह जो भी थी, लकड़ी थी उनके हाथ में, उसको खाने लगा। फिर जब वो गिर पड़ा तो जिन्नों पर वादे हो गया कि अगर वो गैब जानते होते तो उस जिल्लत के अजाब में ना पड़े रहते। तो जब ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत हो गई, वफात हो गया, तो बहुत टाइम तक किसी को पता ही नहीं चला, और उसी डर के वजह से जिन्नात अभी भी काम करते रहे। तो उसी टाइम पर जमीन का एक कीड़ा निकल के उनकी लकड़ी को खाने लगा, और खाते खाते जब लकड़ी ढीली पड़ गई तो वो नीचे गिर गए। तो जब जिन्नात को पता चला कि वफात पा गए और उनके पास गैब कायम नहीं है, जिन्नात समझते थे कि उनको गैब कायम है, तो इस वाक़े से उनको पता चल गया कि गैब कायम उनको नहीं है। अगर वो गैब जानते होते तो उस जिल्लत के अज़ाब में ना पड़े रहते। कौम सभा के लिए भी उनके मस्किन में एक निशानी मौजूद थी। दो बागात थे दाएं और बाएं तरफ, खाओ अपने रब के रिस्क में से और उसका लश्कर अता करो। तुम्हारा शहर बहुत पाकीज़ा है और तुम्हारा रब बहुत बख्शने वाला है। तो इन्होंने आराज किया, चुनांचे हमने भेज दिया उन पर सैलाब बहुत से जोर का, और हमने बदल दिए उनके दो बागों की जगह दो और बाग, जिनमें कड़वे कसीले फैल झाइयों के दरख्त और कुछ थोड़ी सी बेरियां थी। तो ये थी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहानी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।